داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی سے ایک یادگار ملاقات اور کارگزاری۔ آپ دیکھیں کتنی بہترین اور خوشگوار ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے اور مولانا سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی بخشش اور درجات بلند فرمائے۔ آپ اس ملاقات میں دیکھیں کہ کتنی زبردست کارگزاری حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اپنی مولانا سالم صاحب کو سنا رہے ہیں۔ علمی اور عقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں، جو حالات ہیں اس میں اسلام ہی اس کو کر سکتی ہے۔ اس لیے خود ہی ابھی یورپ کا سفر ہوا، ان لوگوں نے بتایا کہ کوئی بھی اسلام کے مخالف کوئی خبر چھپتی ہے مسلمانوں کے، اس کے نتیجے میں اسلامی لٹریچر پڑھا جاتا ہے اور نتیجے میں 100 200 500 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، لوگ پڑھتے ہیں، پھر وہ ان کا مزاج یہ ہے کہ مخالف پڑھیں گے تو موافق اگر دو متضاد رائے ہو، مغرب کے لوگوں کا یہ ہے کہ جب تک دونوں رائے نہ پڑھیں تجزیہ نہیں کرتے۔ جی ابھی پچھلے دنوں ایک جماعت آئی ہوئی تھی باہر کے علماء کی، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں نوجوان، ان کا اصرار ہوا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہیں بھی آنے کو تیار ہیں۔ تو دہلی ذاکر نگر میں جو جامع مسجد ہے وہاں قیام تھا ان کا، میں کسی طرح موقع لگا کر گیا، تو اس میں وہ سب علماء تھے مفتی، بلکہ 5 تو ساؤتھ افریقہ کے تھے، وہ سال لگائے ہوئے تھے، یعنی جماعت سے تعلق تھا۔ 3 ٹوکیو کے تھے، نہیں ٹوکیو کے نہیں، ٹورنٹو کے، کینیڈا کے، اور 2 تھے انگلینڈ کے۔ تو میں گیا تو ایک صاحب خشخشی داڑھی، ایسی ہلکی سی داڑھی تھی، گورے لگ رہے تھے کہ نو مسلم ہیں، انگریز، وہ بیٹھے ہوئے تھے، سب 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا یہ امیر صاحب ہوں گے، تو میں نے جا کر السلام علیکم امیر صاحب، تو انہوں نے کہا نہیں امیر صاحب تو یہ ہیں مفتی صاحب۔ تو پھر مجھے خیال ہوا کہ مسلمان ہوئے ہیں تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے، ان کو خیال ہوگا کہ یہ انگریزوں سے مروب ہوتے ہیں، یہ علماء لگ رہے ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے 2 زانوں۔ ایک طرح سے میں نے لہجے کو بدل کے کہا کہ پھر یہ شیخ المشائخ کون ہے؟ کہ یہ بہت بڑے شیخ المشائخ۔ میں نے کہا کیا نام ہے، کون ان کا تعارف؟ انہوں نے بتایا یحییٰ جیمس ان کا نام۔ جی جی، تو میں نے کہا پھر یہ کیا کب مسلمان ہوئے؟ کہ 5 مہینے پہلے مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا تو پھر یہ اس طرح کہ ہاں ان کے ساتھ 40 دن لگا، سال لگائے ہوئے تھے سب، ان کے ساتھ 40 دن لگا کر ہمیں یقین آیا کہ صحابہ ایسے تھے، ورنہ ہم سوچتے تھے ویسے ہوتے ہوں گے جیسے کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ آخرت ان کے لیے مشاہدہ ہے، غائب نہیں، غیب نہیں، بالکل وہیں کے لیے جیتے ہیں، وہیں کی سب بات، جو بات بھی ان کا قدم اٹھتا ہے بس وہاں کیا ہوگا اس کا اس طرح ایسا تھا، ان کو بیٹھ کر دل بدلنے لگتا۔ میں نے پوچھا کیسے مسلمان ہوئے کہ سلمان رشدی جو ہندوستان آ رہا تھا تو مسلمانوں نے احتجاج کیا، اس پر وہ ٹیلی گراف وہاں کا مشہور اخبار ہے، اس نے اداریے چھاپے کہ مسلمان بنیاد پرست ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اس تسلیمہ نسلیہ سلمان رشدی کو پڑھا کے دیکھیں بھائی کیا لکھا ہے جس پر مسلمان اتنے برہم ہیں۔ پھر خیال ہوا کہ ان کا تو پڑھ لیا، اب سیرت بھی پڑھنی چاہیے، سیرت پاک پڑھی ہے۔ وہاں انگلینڈ کے سب سے بڑے دائی ہیں، ان کا نام ابراہیم گرین، وہ بھی ایک چرچ کے یہ ایک چرچ کے مینیجنگ ٹرسٹی متولی تھے، یہ صاحب تو یہ جو یحییٰ جیمس صاحب، اور وہ پادری تھے۔ تو اگر آپ جا کر پوچھیں گے غیر مسلموں میں دعوت کا کون، تو وہ فوراً ان کے مرکز کا نام ہر آدمی کہے گا کہ بھائی ان سے ملیے آپ ضرور۔ وہ بتا رہے تھے کہ اولمپک میں جو ہم نے اسٹال لگائے، پچھلے سال لندن میں اولمپک ہوا تھا کھیلوں کا، اس میں جو اسٹال لگائے بتا رہے تھے 1374 لوگ آ کر مسلمان ہوئے اس میں۔ کیسی کیسی غلطیوں سے میں کبھی حرمین شریفین کے سفر پر جا رہا تھا، تو پہلے میرا 16 تاریخ کی فلائٹ تھی، تو لوگ بیچارے 1-2 لوگ جن کو کام تھا مشورہ وہ آ رہے تھے، تو ایک صاحب ہمارے ساتھی ہیں کہ مجیب عائشہ، مجیب ہیں، ایک 9 مسلمہ سے شادی کی، اسلم بھائی کے یہاں رہتی تھی بچی، تو وہ ایک صاحب کو لے کر آئے، داڑھی رومال بالکل پوری داڑھی بہت ہی، چہرہ بھی ان کا ایسا شکل و چہرہ۔ میں نے کہا السلام علیکم امام صاحب، میں سمجھا امام ہوں گے ان کے، میں نے مولانا بھی نہیں کہا امام صاحب، کہ نہیں یہ امام نہیں ہے، یعنی کون ہے کہ فلاں مشرا ہیں، مشرا تھے، ابھی عبد الرحمن ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے؟ میں نے کہا یہ ایسے آدمی ہیں کہ
कलमा पढ़कर गए, घर नहीं गए, जमात में 4 महीने लगा के आए। मैंने कहा कैसे मुसलमान हो गए, कहाँ के रहने वाले? उन्होंने कहा दिल्ली के। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो ज़रा थोड़ी बदचलन हो गई और वो एक मुल्ला जी से उसके ताल्लुकात हो गए नाजायज़, कबाड़ी का काम करते थे। मुल्ला जी उनको लेकर भाग गए और वो जाने से पहले ही किया, मुझे जिस रोज रात को जाने वाले थे, मुझे 3 बच्चों को लेके वो चली गई। वो बच्चों को ले गई तो मुझे किसी उनसे पैसे दिए बदमाशों को और मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर और बांध कर, एक बोरी में बांध कर रेल की लाइन में डाल दिया कि रेल आएगी तो कट जाएंगे। वो पुलिस वाले, जीआरपी वाले आउटर से उतर कर वो अपने घर, वो क्वार्टर उनके करीब थे, तो गाड़ी रुकी आउटर पर, तो उस पर उतर गए। वो उन्होंने देखा बोरी पड़ी है, हिल रही है, तो ख्याल हुआ कोई मार के डाल गया है, क्या हुआ है या मर रहा हो। तो उन्होंने फिर जब वो वहाँ करीब गए तो और हिलने लगी, तो डरे, रात का वक्त था कि कोई भूत वूत ना हो। दूसरे ने कहा भूत है भाई, मर्डर का केस है, तुम क्या बात कर रहे हो, जल्दी गाड़ी ना जाए। उन्होंने उठा के गाड़ी को रेलवे लाइन से गाड़ी और बोरी बाहर उठा गई, तो वो कहें भाई आहिस्ता से, उसने सच कहा आहिस्ता से, और उसे खोला तो उसका मुंह बांध रखा था, हाथ वाथ बांध रखे। क्या हुआ कि मेरी बीवी उसके साथ होकर कहीं इनको खोला, ये आया, रिपोर्ट वगैरह लिखी गई। अब वो अपने बच्चों को तलाश, बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, मेरे बच्चे मिल जाए, वो इन्हें मुजीब को मिल गया। तो उसने कहा बच्चे तो अल्लाह वो करेगा, जरा दावत का जज्बा तो रखते हैं। इन्होंने उसे दावत दी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को भेज देंगे, कि मेरे बच्चे मिल जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने उसे कलमा पढ़ाया। अब क्या करूँ मैं, बताओ कैसे मिलेंगे बच्चे? कि आप ऐसा करो, दीन सीखने निकल जाओ, अल्लाह से मांगियो, अल्लाह के रास्ते। तो ये ले एक सर्टिफिकेट बनवाया, इनके एफिडेविट, और जमात में भेज दिया, वहीं से वहीं। अब इस दौरान ये हुआ कि इनकी बीवी जो है, वो जो दो था, वो मुल्ला जी, वो बेचारा वो जा रहा था, उस पर मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हो गया और एट दी स्पॉट उसका इंतकाल हो गया। अब उसके जो पुराने बेटे थे, उन्होंने कारवाड़े काम था, एक फ्लैट पर इसने इनको रख दिया था अपने, तो उन्होंने मार के इसको निकाल दिया घर से। उस माँ को दूसरी जो थी, उसने कलमा में पढ़ा के लोगों को दिखाने के लिए निकाह कर लिया था उससे। अब ये परेशान हुई क्या करूं, तो इसने अपने वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ अपनी एक थी, उसको फोन किया, मुसलमान थी वो, इससे ताल्लुकात थे इसके, जिनके यहाँ मुल्ला जी से ताल्लुकात हुए थे। उसने कहा कि वो तेरा शौहर को वो जमात में चलाएगा मुसलमान होकर, तो कोई तरीका राब्ते का हो या हो। तो मुजीब भाई से रब्ता किया, उनसे कहा भाई मैं आइंदा हर खता से तौबा करती हूँ, मुझे अगर वो करे। तो उन्होंने कहा तू मुसलमान हो जावे तो मैं तुझे तो कहा मुसलमान तो मैं हो गई, तो बच्चों को लेकर आ गई। यानी मुल्ला जी लेकर भागे थे, तो उसे इस्लाम के नाम से चिड़ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हालात है। वो चूंकि हम लोग शोर समझ जाते हैं, तो अक्सर जगह नाम हम लोगों का ही हो जाता है। असल तो ये अल्लाह की तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे हिदायत उतरी हुई है अंदर से, बिल्कुल अजीब गरीब वाकयात बात। ये जो ये मथुरा का इलाका है, कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पर 22 तीर्थ हैं इनके, ये महाबन है, ये गोवर्धन है, यहाँ वो गाय चराते थे, उनकी ससुराल है, यहाँ ये फला है फला। तो गोवर्धन जो है वो 48 कोस की परिक्रमा है, जिस पर तवाफ करते हैं वो लोग। बाद लोग 20-20 साल से तवाफ कर रहे हैं तवाफ। अब तो उन्होंने वो रोड भी बना दी है वहाँ पर छोटी सी, जिस पर पैदल हो करते हैं। एक पंडित जी तवाफ कर रहे थे, तो लुटिया ले रहे थे, उसमें सुराख खोल रखा था, लोग अपनी गर्दन दूध डालते थे, वो उतरता था। तो मैंने पूछा जरा रुक जाओगे? नहीं, मैंने नजर मान रखी है, मैं रुक नहीं सकता। मैंने कब से तवाफ कर रहे हैं? उन्होंने कहा 22 साल से परिक्रमा कर रहा है। गोवर्धन है, वहाँ 11 कोस से लोग लेट कर जाते हैं, लेटा निशान लगा दंडोत करने, फिर जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वहाँ एक मंदिर है बरसाना का। बरसाना ये राधा जो उसकी महबूबा थी उसका वतन है, गोया उसकी ससुराल कृष्ण जी की। तो वहाँ पहाड़ी है, वो दर्जा बदर्जा मंदिर है। तो जो सबसे बड़े बाबा हैं वो एक मचान पर रहता है, तो वो हमेशा उसी पर उतरता नहीं होता। जो श्रद्धालु अकीदतमंद आते हैं तो पाँव रखकर वो आशीर्वाद देता है। 30 साल से वो मचान से नहीं उतरे। बशरी जरूरत को तो उतरते होंगे तो वालों ने, लेकिन ये मशहूर है कि 30 साल से सिर्फ 2 दफा 2 मेलों में गए। वो हाथरस में 1 दफा मेलों में गए थे, तो अखबारात में आया था 8 लोग वहाँ मचान बनाया गया था, तो 8 लाख लोगों के सर पर उन्होंने अपनी वो जो है वो आशीर्वाद दिया। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, आपके शायद याद भी होगा, तो वो उनका पाँव रखवाने के लिए उनके आश्रम में गए।
प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, बारात वगैरह टीवी पर सब आया था कि वो हम गए राजीव गांधी। तो एक हमारे अब्दुल रशीद दोस्त हम हैं, आपसे मिलते रहते हैं, कर रहे हैं, वो यहाँ के हरिद्वार के हैं, नो मुस्लिम, बड़ा उन्हें कुरान से शौक है, कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा जैसे नाज़िल हो रहा, समझ फहम का नुकात पर और लफ्ज़ों पर गौर करते रहेंगे, बड़े ये आ रहा है मुझसे कहेंगे, मशवरा कहेंगे, ये बात आ रही है, अल्लाह ने ये बात कही, ये लफ्ज़ नहीं कहा कुरान में, इतनी जगह ये लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ यहाँ है, इसका मतलब ये आता है समझ में, ये तो नहीं मतलब इतना वो कह रहा है इसे। तो उन्हें ये होता है कहीं भी कैंप लगता है तरबियती, तो वो चाहते हैं कोई VIP जो मशहूर लोग हैं उनसे मिलें। और उन्होंने वहाँ मेवात में कैंप लग रहा था, हाथिया एक मदरसा है, तो उन्होंने कहा कि बाबा से मिलवा दो, बाबा से मिलवा दो, मौलाना से इसरार कर रहे थे। और वहाँ तक रसाई ज़रा बड़ा मुश्किल था। तो एक मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह है, उसका एक सरदार आ गया, वो मेवाती, अब बड़ा मशहूर है वो गैंग। वो आ गया तो मौलाना से कुछ जान पहचाने में, तुम्हारी बदमाशी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कि बदमाशी से फ़ायदा क्या होता है, नुकसान ही होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या बताओ, सेवा खिदमत बताओ। उन्होंने कहा कि बाबा से मिलना चाह रहा अब्दुल रशीद, मुझे कहा क्यों नहीं आपने? तो उन्होंने अपने किसी उसको ताल्लुक वाले को जो नीचे का था बाबा का, उसे फ़ोन किया, उनका लेके आ जाओ, मैं मिलवा दूंगा, भेंट करवा दूंगा। जैसे वहाँ पहुँचे तो देख कर वो हक्का बक्का हो गए, भाई क्यों अल्लाह जी यहाँ आ गए? तो उन्होंने कहा बाबा जी घबराइए नहीं, हम एक माँ बाप की संतान है, आप मेरे चचा होंगे या मेरे भाई होंगे, मरने के बाद एक जटिल समस्या है, उसके बारे में थोड़ा सा वार्ता करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। तो अपने मुरीदों से कहा कि वो एक मुँह बिछाइए है कपड़ा नीचे, तो एक कालीन का टुकड़ा लाकर बिछाया गया, तो उतर आए, जय जय करने लगे मुरीदीन के, कौन महात्मा आ गई कि बाबा जी उतर आए इसकी वजह से। और वो लंगोटी पहनते हैं। अब्दुल रशीद बताया थे कि जब मैंने बात करना शुरू की तो उन्होंने वहाँ गरखा सा जो था, लाल सा होता है उनका, वो उन्होंने उस पर डाल दिया घुटने तक की। और जब वो सवाल करते थे, मैंने पहले दावत दी और जब कुरान से जवाब देने शुरू किया तो उन्होंने सर भी ढक लिया दूसरे से लेकर। 28 मिनट बात हुई, वो सवाल करते रहे, सिर्फ कुरान मजीद के आयतें पढ़कर जवाब देते रहे। तो आखिर में उन्होंने कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा कि 10 साल से मेरे दिल में ये बात आ रही है कि तुझे मुसलमान होकर मरना है, और मुझे हज की बहुत तमन्ना है, मेरे हज की कोई सबील बनाइए। यानी वो जो आदमी 30 साल से मंदिर से नहीं निकला और कभी किसी मुसलमान की सूरत भी शायद उसने इस दौरान न देखी, वो ये कह रहा है कि 10 साल से मेरे दिल में ये बात आ रही है कि मुझे मुसलमान होकर मरना। इससे होता है कि हिदायत का अल्लाह की तरफ से खास फैसला हो रहा है, बस हम लोग अगर जरा समझते हो जाए तो। एक एक बात ऐनी बात शाही का सामने आ रही, आपकी उनको इखबार में बरकतें खिदमत को पूरे आपकी दुआएं बहुत सारा है, तो कभी भी कोई बात होती है तो मुझे बहुत ही वो मिलता है, उसका ख्याल भी कि हज़रत हमारे लिए दुआ भी फरमाते हैं। सफर की वजह से हाजिरी मुझे भी ऐसा रहता है, वो जी चाहने के बावजूद भी ख्याल होता है कि वक्त ये डिब्बा दिल्ली वगैरह का तो कोई सफ़र होता ही होगा कभी ना कभी। हम लोगों के फुलत मदरसे के जो काफिला हैं उनकी तमन्ना है कि फुलत में आपकी ज़ियारत करें, कभी उधर को दिल्ली अगर कोई सफ़र जी क्या करें, शुगर फ्री। अच्छा यहाँ का भी सफर है, दिल्ली जाऊंगा, मुझे अजमेर जाना है, तो अजमेर में तो अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा मदरसा कायम हो गया है, उसकी बात में तो कम वक्त में अल्लाह ताला ने ये ख्याल हुआ कि इस शहर से इशात इस्लाम की अव्वल में शुरुआत हुई, तो उस जगह के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या जब है इसकी नशत सानिया के लिए जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر کائنات اپڈیٹ پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو اسی طرح سے ملتی رہیں۔